और संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हो गई। आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां कार्यवाही जारी है। इससे पहले जिस तरीके से हंगामा हुआ था, हंगामे की वजह से स्थगित कर दी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से देख रहे हैं आप, कार्यवाही जारी है। अग्रे अग्रे ब्राह्मण नदी नाले वर्जन्ते, लेट देयर बी ऑर्डर इन द हाउस। ऑनरेबल मेंबर्स, सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 श्री पंकज चौधरी जी। प्रहलाद जोशी। पहले ऑनरेबल मेंबर्स, when the notice was received under 176 in terms of the rules, that notice was considered by me and I had accepted the notice, which means मेरे नाम से उल्लेखित दस्तावेज लोकसभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। the next part of the rule is that date and time had to be fixed in consultation with the leader of the Council of States. Now, I think I had given that ruling. No, Tiruchi Shiva said that I had taken a view on the same issue on 20th of July 2023 in categorical terms. So now the listed business is short duration discussion. It has been indicated I rise to present a copy of the 25th and 26th report in Hindi and English versions of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes 23-24 listed against my name at serial number 10 in today's order paper. Thank you. there has been no चौधरी जी। Justice for India। महोदय जी, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध कोविड-19 महामारी, वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत का योगदान और आगे की रणनीति विषय 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियां, सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में विदेशी मामलों संबंधी समिति 17वीं लोकसभा के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियां, सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। I had considered, mark my words carefully, notices that were given under Rule 176, and those notices emanated from those 80 के 6 फरवरी 2023 को दिए गए उत्तर में सुदृढ़ करने वाले वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 13 श्री नित्यानंद राय जी। On behalf of Sri Arjun Ram Meghwal, I am making a statement regarding the status of the implementation of the recommendation contained in the 340 report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on demand for grant of pertaining to the Ministry of Culture. आइटम नंबर 14 श्री राजीव चंद्रशेखर जी। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से सदन की कार्यवाही जारी है, लेकिन इसी बीच नारेबाजी भी हो रही है। हंगामा हुआ जिसके चलते स्थगित करनी पड़ी थी, एक बार फिर शुरू हुई है सदन की कार्यवाही। लेकिन आप देख रहे हैं दोनों ही सदनों में एक तरफ नारेबाजी भी जारी है, हंगामा हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच कार्यवाही भी जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। लोकसभा और राज्यसभा, मणिपुर को लेकर आज भी संग्राम, नारेबाजी आप सुन भी रहे होंगे। और आज एक बार फिर सदन की कार्यवाही प्रभावित सीधे तौर पर हो रही है, क्योंकि गतिरोध लगातार पैदा हो रहा है। मणिपुर पर चर्चा के लिए नोटिस दिया गया है और इसको लेकर
हंगामा भी जारी है लेकिन कार्यवाही भी हो रही है। Mr. Shiva, Mr. Tiruchi Shiva, you are such an experienced man. Notices under Rule 267 have not been admitted by me. They have been declined by me. And it is most unfortunate. Nothing will go on record. It is most unfortunate that my decision, which was in categorical terms on 20th of July 2023, which has been reiterated by me, is not being appreciated. On the other hand, I find responsible members of the House are challenging that decision. I would appeal to the honorable members to kindly go through the proceedings, take note of the decision I have imparted. Right now the listed business is short duration discussion on issues connected with Manipur. Honorable members, is the House prepared to take discussion on Manipur? The government is keen. I therefore call upon Shri Virendra Prasad Bashe to initiate discussion on the short duration. Thank you, Honorable Chairman, sir, to allow me to discuss the situation of Manipur. Mr. Diglesi, Mr. Diglesi, Mr. Diglesi, Mr. Diglesi. हंगामे के बीच कार्यवाही जारी और इसी बीच देखिए लोकसभा और राज्यसभा में फिर हंगामा शुरू हो गया है। राज्यसभा में नियम 176 के तहत नोटिस दिया गया जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है और विपक्ष की मांग पर राज्यसभा सभापति बोले हैं कि 267 के तहत चर्चा मंजूर नहीं। 267 के तहत चर्चा मंजूर नहीं, राज्यसभा के सभापति की तरफ से कहा गया। लोकसभा राज्यसभा में इसके बाद एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया। राज्यसभा की कार्यवाही जारी जरूर है लेकिन देखिए आप कितना हंगामा इस वक्त वहां पर हो रहा है। मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर जिस पर यह हंगामा, क्योंकि 267 के तहत चर्चा मंजूर नहीं, राज्यसभा के सभापति ये कह रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं कि आप लोग बताएं इस पर चर्चा करने के लिए क्या तैयार है सदन। Honorable members, Digvijay Singh ji has indicated that it is prerogative, unqualified right of leader of opposition to intervene anytime, which means that right accrues to him also. With utmost respect, such a right is dependent upon the rules and the direction given by the chairman. There can be no such unqualified, unregulated, blanket right. Sir, do you want discussion on some more? From your seat. Unless the members are on their seats, the members have to be on their seats. On your seats. I will, but हंगामा कितना हो रहा है। मणिपुर की नारेबाजी वहां पर लग रही है। नियम 267 के तहत चर्चा चाहता है विपक्ष, लेकिन इसको यहां पर स्वीकार नहीं किया है और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की तरफ से कहा गया है कि the
राज्यसभा की कार्यवाही को हंगामे के बीच एक बार फिर से स्थगित करना पड़ा है और 2:30 तक के लिए यह कार्यवाही एक बार फिर स्थगित हो गई है। और जिस तरीके से देखिए कार्यवाही तो हो रही थी लेकिन हंगामा हो रहा था। नियम 267 के तहत विपक्ष चाहता है चर्चा हो, हालांकि नियम 176 के तहत मंजूरी दी गई सभापति की तरफ से, लेकिन इसको लेकर ही हंगामा हो रहा है और जिसके चलते एक बार फिर सदन स्थगित करना पड़ा। 2:30 के लिए एक बार फिर से सदन को, राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया है। उसके बाद यह कार्यवाही फिर शुरू होगी, लेकिन फिर वही सवाल कि बार बार सदन शुरू होती है लेकिन हंगामा इतना होता है कि उसे स्थगित करना पड़ता है। ऐसे में चर्चा कैसे होगी, डिस्कशन कैसे होगा, किसी भी बिल पर बात कैसे होगी, और सीधे सीधे ये सदन की कार्यवाही को प्रभावित करता है। ये देश की संसद का नुकसान है। लोकसभा की कार्यवाही हालांकि अभी जारी है, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारी हंगामा वहां हो रहा था। विपक्ष नारेबाजी एक बार फिर उसने शुरू कर दी थी। जिस तरह से कहा गया सभापति की तरफ से कि 267 के तहत, नियम 267 के तहत विपक्ष चाहता है कि चर्चा इस पर हो। राज्यसभा में विपक्ष ने इस पर नाराजगी व्यक्त की जब इस पर मंजूरी नहीं मिली और फिर हंगामा शुरू हुआ। अब लोकसभा की कार्यवाही आपको सीधे दिखाएं। प्रश्न यह है कि लोकसभा द्वारा यथापारित संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश 3रा संशोधन विधेयक 2022 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत। तो फिर से हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। इस पर नजर हमारी रहेगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।